Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we discuss the problem of final accounts of banking companies. The problem is referred from Nirali publication on page number 3.53 and illustration is 5. Here we discuss the accounts or ledger with schedule wise and effect of adjustment. So it is a revision lecture. Already we upload video number 2 of banking final accounts of banking companies. In this video we discuss how to draw profit and loss and balance sheet, how to draw schedules and adjustments effect, and also tally the profit and loss and balance sheets. So please watch video carefully. In this video we only discuss the accounts with schedule wise. Okay. In this problem, the following is the trial balance of Dhan Vikas Bank Limited, Dhargaon, as on 31st March 2021. Okay. So this is the trial balance is given. So here discuss these accounts with schedule wise. Okay. So this is a short revision. Okay. So first one is subscribed capital. सो सब्सक्राइब कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 जो है वहाँ आ जाएगा. मैं यहाँ लिखती हूँ शेड्यूल नंबर 1. ओके. शेड्यूल नंबर 1 का नाम है शेयर कैपिटल. वहाँ हम क्या लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच और अमाउंट लिखेंगे 5 लाख. ओके. देन रिजर्व फंड दिस गोज टू शेड्यूल नंबर 2 and the name of this schedule number 2 is reserve. Okay. Then loans, cash, credit and overdraft. This goes to schedule number 9. Okay. So what is the schedule number 9? The schedule number 9 is advances. Schedule number 9 is advances. Okay. So this amount goes to schedule number 9. Then premises. This is our fixed asset, so goes to schedule number 10. Indian government securities. So sorry, premises. This is goes to fixed asset, so this goes to schedule number 10. So schedule number 10 का नाम है fixed asset. Then India government securities. This amount goes to schedule number 8, that is called the investment. Okay. Next, current deposit. Current deposit goes to schedule number 3. The name is deposits. Fixed deposit is also goes schedule number 3. This is also deposit. Current deposit, fixed deposit. And last is saving bank deposit. This is also deposit. So these 3 goes to schedule number 3. Then salaries. Salaries is the expenses of bank, so goes to schedule number 16. And the name of 16th schedule is operating expenses. Okay. Then general expenses, it is also goes to schedule number 6, operating expenses. Rent, rates and taxes also goes 16 schedule. Director fees is also goes to 16 schedule. So this salary, general expenses, rent, rate, taxes and director fees goes to schedule number 16, and the name of 16th schedule is operating expenses. Next is the profit and loss account on 1st April 2020. So this is the last year's profit and loss balance, previous year's profit and loss balance. So this balance goes to profit and loss account, and balance write on the in the profit and loss स्टेटमेंट. ओके. अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो वीडियो नंबर 2 आप देख लीजिए, वहाँ भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिया है. देन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, दिस गोज टू शेड्यूल नंबर 13. ओके.
So what is the schedule number 13? Interest on. Okay, this is the main source of bank, income source of bank. Okay, then stock of stationery, this goes to schedule number 11 because this is our stock. Okay, bills purchased at discount, this goes to schedule number 9. And what is the schedule number 9? It means advances. Okay, then interim dividend paid. So interim dividend paid is goes to profit and loss statement. Okay, and it is written on appropriations because this is the dividend declared by the bank. Okay, so interim dividend goes to profit and loss statement and it write to the appropriations column. Okay, recurring deposits, recurring deposit is also deposit, so goes to schedule number 3. Shares, this is our investment, so goes to schedule number 8. Cash in hand and with RBI, this is our uh, cash in hand, so goes to schedule number 6. And what is the name of schedule number 6? The schedule number 6 is cash and balance with Reserve Bank of India. Okay, then last is money at call and short notice, this goes to schedule number 7. And the schedule number 7 is balance with banks and money at call and short notice. So हमने क्या किया, ये जो सब अकाउंट्स है, ये जो सब लेजर है, उसे हमने शेड्यूल वाइज बताया. सो आप क्या करेंगे, शेड्यूल आप ड्रॉ करेंगे और उसी हिसाब से आप सब अकाउंट्स वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट. Okay, so this is our adjustment. The following information should be considered. This is the first adjustment. Provision for bad and doubtful debt is required to be made at rupees 5,000. So इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? So this is our RDD. So जो भी शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल नंबर 9. ओके, सो 9 नंबर के जो शेड्यूल है उसे हम बोलेंगे एडवांसेस. ओके, उसमें से जो भी हमारा लोन्स कैश क्रेडिट जो है ना, वहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. लोन्स कैश क्रेडिट का जो बैलेंस है 2,85,000. ओके, सो वहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. शेड्यूल नंबर 9 से हम माइनस करेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा. जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टेटमेंट ड्रॉ किए, वहाँ जो प्रोविजंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रोविजंस रहती है, उस प्रोविजंस में हम क्या करेंगे, राइट आउट करेंगे. दिस इज अवर प्रोविजन. ओके, ये कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा. जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे और एक बैलेंस शीट का भी हम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रोविजंस कॉलम है वहाँ हम लिखेंगे आउटर कॉलम में. ओके, सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड 5,000 का फर्स्ट इफेक्ट इज गोज टू शेड्यूल नंबर 9. वहाँ से हम लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट की जो भी अमाउंट है 2,85,000, वहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और उसके बाद सेकेंड इफेक्ट हम लेंगे प्रोविजन साइड. ओके, प्रोविजन साइड कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा. सेकेंड एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज ₹8,000. सो दिस इज अवर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. सो इसका इफेक्ट जाएगा शेड्यूल नंबर 11 एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू शेड्यूल नंबर 13. शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, वहाँ से हम क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, हम ऐड के शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो हमने लिखा है ट्रायल बैलेंस की अमाउंट, वहाँ हम क्या करेंगे, उस अमाउंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट जाएगा 11 शेड्यूल. सो 11 शेड्यूल का नेम क्या है, अदर असेट्स. ओके,
Then our third adjustment is unexpired discount or rebate on bill discounted amounted to rupees 380. सो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट और रिबेट जो भी रहेगा सो इसका इफेक्ट आ जाएगा शेड्यूल नंबर 13। शेड्यूल नंबर 13 जो हमारा है इंटरेस्ट अर्न। ओके, शेड्यूल नंबर 13 में जो इंटरेस्ट अर्न वाला हमारा जो शेड्यूल है वहाँ से हम क्या करेंगे, 13 से हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ओके, उसका ना वहाँ रहेगा, सॉरी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो हमारा ट्रायल बैलेंस में बैलेंस है वहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट? अमाउंट इज 1,28,000। ओके, वहाँ से हम माइनस करेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा शेड्यूल नंबर 5 बिकॉज दिस इज़ अवर लाइबिलिटीज। ओके, सो ये इफेक्ट हमारे हो गए। फोर्थ वाला है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाज 4% एक्चुअल। सो ऑलवेज डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड दे दिया है 4% एक्चुअल, सो डिविडेंड इज कैलकुलेट ऑन द शेयर कैपिटल। सो ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल की हमारे शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है, हम देखते हैं 5 लाख। ओके, सो ट्रायल बैलेंस में जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी है, 5 लाख है। सो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। सो 5 लाख इज अवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल और जो डिविडेंड पे कर रही कंपनी उसका परसेंटेज है 4%। ओके, सो दिस अमाउंट इज रुपीज 20,000। ओके, दिस इज द 20,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे, जस्ट मिनट, we go to the problem. सो ट्रायल बैलेंस में ये जो सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख उस पर हमने 4% निकाला, 20,000 आ गया और ऑलरेडी हमने डिविडेंड पे किया है 17,000। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी 17,000 डिविडेंड हमने पे किया है लेकिन 20,000 डिविडेंड हमें देना है। सो 20,000 से 17,000 हमने पे किया, सो 3,000 इज अवर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सो इसे हम क्या करेंगे, बोलेंगे तो दिस इज अवर अनक्लेम्ड डिविडेंड। ओके, सो द फर्स्ट इफेक्ट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम जाएंगे। वहाँ जो एप्रोप्रिएशन पे हमने ऑलरेडी 17,000 की अमाउंट लिखी है वहाँ हम 3,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 20,000 की अमाउंट हम आउटर में लिखेंगे। ओके, देन दिस इज द 3,000 अमाउंट इज अवर अनक्लेम डिविडेंड जो हमने पे नहीं किए। सो दिस इज अवर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। So this effect goes to schedule number 5. Okay, this is called unclaimed dividend. Okay, so यहाँ क्या किया हमने कि this is our subscribed capital and the 4% dividend declared by the company. So 20,000 is our dividend amount, but 17,000 dividend we already pay. Okay, so we have already pay rupees 17,000 and the amount of dividend is 20,000. So 3,000, this is the balance amount is called unclaimed dividend. Okay, sorry, unclaimed dividend. Okay, so this is our two effects. First effect goes to profit and loss statement, right in the appropriations column, and second effect goes to schedule number 5. Then fifth adjustment, endorsement made on behalf of customer is total rupees 1,15,000. So this effect goes to schedule number 12. This is our contingent liability.
Okay, so here we can write only one effect. Authorized capital was rupees 80,000, equity share of rupees 10 each. This is our authorized capital. So this capital only write on the schedule number 1. ओके हम यहाँ क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर 1 में ओनली हम राइट करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आ जाएगा, बिकॉज बैंक का 80,000 का 80,000 मल्टीपल 10 का जो ऑथराइज कैपिटल वो हम क्या करेंगे, सिर्फ राइट आउट करेंगे. ओके, शो करेंगे. नेक्स्ट, rupees 10,000 were added to the premises during the year. Depreciation 5% on the opening balance is required. So 10,000 की premises हमने क्या की, ऐड की इन दिस ईयर, और उस पर जो डेप्रेसिएशन है 5% वो भी हमने ओपनिंग बैलेंस में दिया है. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमाइसेस. हाउ मच? दिस इज द 50,000. ओके, सो शेड्यूल नंबर 10 हम यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फिक्स असेट, और वहाँ हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमाइसेस है हमने क्या किया है, 50,000 की प्रीमाइसेस, सो हम यहाँ लिखेंगे 40,000, और वहाँ हम ऐड करेंगे परचेसेस और एडिशन ड्यूरिंग दिस ईयर 10,000, और जो भी अमाउंट रहेगी 50,000. ओके, तो वहाँ से हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम निकालेंगे 40,000 पे, बिकॉज इन दिस एडजस्टमेंट दे आर सेट 5% डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस. ओके, सो दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस. सो 40,000 में हम क्या करेंगे, 5% परसेंटेज निकालेंगे, और उसकी अमाउंट आ जाएगी 2,000. ओके, सो यहाँ से हम 2,000 माइनस करेंगे, और आउटर साइड हम अमाउंट लिखेंगे 48,000. ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस. जब भी कभी ओपनिंग बैलेंस पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा तो हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए. सो हमने यहाँ प्रेजेंटेशन क्या किया, प्रीमाइसेस टोटल 50,000 है, लेकिन 40,000 नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की है, और 10,000 हमने इन दिस ईयर हमने परचेस की है. सो 50,000 इज आवर टोटल प्रीमाइसेस. वहाँ से हम डेप्रिसिएशन 2,000 माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 48,000. ओके, सो दिस इज आवर इफेक्ट. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा डेप्रिसिएशन का, शेड्यूल नंबर 16. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो फर्स्ट इफेक्ट कहा जाएगा शेड्यूल नंबर 10, वहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा शेड्यूल नंबर 16. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वॉज रुपीज़ 3,90,000. यहाँ हम देखेंगे जो भी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी अमाउंट है 4 लाख. ओके, सो दिस इज द 4 लाख अमाउंट, और एडजस्टमेंट में हमने देखा है कि उसकी वैल्यू 3,90,000 हो गई. सो शेड्यूल नंबर 8 में जाने के बाद, शेड्यूल नंबर 8 में हम लिखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3,90,000, बिकॉज इसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 3,90,000. ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4 लाख. सो जो ये 4 लाख अमाउंट है, सो हम यहाँ आउटर साइड ओनली 3,90,000 लिखेंगे, और इनर कॉलम में हम लिखेंगे 4 लाख इज अवर वैल्यू. ओके, सो इसका जो इफेक्ट है 10,000. सो दिस बैलेंस गोज टू दी शेड्यूल नंबर 14. शेड्यूल नंबर 14 उसका नेम है अदर इनकम. दिस इज अवर इनकम. ओके, हमारे जो 3,90,000 की इन्वेस्टमेंट अभी हो गई, हमारे पास 4 लाख है, सो 10,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. सो इसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर 8 में हम 4 लाख नहीं लिखेंगे,
जो ट्रायल बैलेंस में 4 लाख है वो हम नहीं लिखेंगे। ओके, हम क्या लिखेंगे, 4 लाख इनर साइड लिखेंगे, और जो मार्केट वैल्यू है वो ओनली हम यहाँ लिखेंगे। ओके, और इसका जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस हम लिखेंगे शेड्यूल नंबर 14, that is called the other income. Okay, so this is the effect of the adjustment. This is the effect of the adjustment. First goes to schedule number 8, वहाँ हम ओनली 3,90,000 लिखेंगे, और जो भी डिफरेंस है वो हम अदर इनकम में लिखेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक वीडियोस प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।